good evening, everyone. Am I audible? Am I clearly audible to you? Right. First, before we begin with this webinar, I request you all, those who can switch on their videos, please switch on their video so that you can have better concentration in the class. Okay. It is a webinar, but this webinar will be more like a class so that you can understand the maximum information that we are providing you in this class. Okay, we all know that we are at home. Okay, so आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं फील करने की जरूरत है कि आज संडे है, we haven't taken a bath or we are not properly dressed up. So it is the winter time and it is the class from home, work from home times, right? So you all can switch on your videos without thinking about your looks because it is for your concentration, right? Okay. Okay. So you all are here. All of you are attempting in 2022. All of you are attempting in 2022, right? Because we are only focusing upon the 2022 prelims. Okay. This workshop will be totally focused upon prelims 2022. Clear? Now, this workshop will be more concerned about the doubts, the concerns that you all are having regarding your preparation, because it is the time that you must have started your preparation because the exam is on 5th of June, right? 5th of June ko exam hai, and you all are concerned whether to start studying for prelims, whether to continue answer writing and prepare for prelims, whether to give attempt this year or not. All these things, all these concerns you must be having in your mind, right? So first, you all tell me what are the concerns that you are having. So we will be having it like a FAQ. Okay, we'll be having it like a FAQ, and whatever I have to tell, I'll tell you. Generally क्या होता है, वर्कशॉप या वेबिनार खत्म होने के बाद क्वेश्चंस लिए जाते हैं, ठीक है? लेकिन जब वर्कशॉप खत्म हो गई तो आपके क्वेश्चंस तो आंसर हुए ही नहीं, तो क्या फायदा इतनी देर बैठने का? तो हम लोग उल्टा चलेंगे. हाँ ऋषि बेटा. हाँ बोलिए. Hello. हाँ बोलिए. Good evening, sir. Good evening. Am I audible? Yes, you are audible, and I'm writing all your questions on a screen. Okay. So on a screen, I'm writing all your questions so that we can answer all the questions one by one. Rishi, what's your question? What is there in your mind? Sir, my question is that like I have completed my syllabus of polity and governance, international relation अभी चल रहा है थोड़ा सा, वो भी मतलब तो सर ये जब मेरा complete हो जाएगा तो polity को मैं prelims specific तैयारी कैसे करूँगा उसकी? ठीक है. तो क्वेश्चन आपका सर prelims को focus करके. रिवीजन फॉर प्रीलिम्स, दिस इज योर क्वेश्चन. हाँ सर, prelims को मैं focus करके उसकी तैयारी कैसे करूँगा, ये मेरा question. Thank you, sir. Okay. Bhumi, what's your question? Yes. Sir, my question is that when we are referring to the previous year questions or like any other questions in any test series, we realize that there are some new topics coming in front of us, like which we had not come across before. We would have touched the topic, but not exactly this detail. So in this cases, as we have some time right now for the prelims, should we start researching more about those topics which we are getting to find new, or should we just keep ourselves limited to the source that we have studied? Okay. So what topics to focus upon, right? Yes, sir. Means should we start digging more into the new topics that we are coming across, or should we just limit ourselves? Okay. Now, any other questions that we have in our mind? And do not consider this is specific only to polity and IR. We are focusing to the complete prelims examination, okay? And only prelims. Yes, Rajesh, what's your doubt? I'm just taking your doubts first.
यस राजेश। सर स्पेशली मुझे ज्योग्राफी का थोड़ा ऐसा हो रहा है कि ज्योग्राफी में मैंने कंसेप्ट तो पढ़े, मुझे पर मैप से रिगार्डिंग जो लोकेशंस है तो उनमें थोड़ा इश्यूज बहुत आ रहा है, मतलब कैसे इसको हैंडल करूं। ठीक है, ज्योग्राफी से कंसर्न। वेरी गुड। Any other doubt we have? Someone has asked how to cover current affairs. Okay. एक और डाउट है, राजेश बताइए। नहीं सर, गलती से हुआ सर, सॉरी। ठीक। So these are the 4 questions that we have in our mind, how to prepare for current affairs. ठीक है, ये तो सबके दिमाग में है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं। यस, शमित अनम्यूट करें, बताइए। सर अभी मीन्स प्रीलिम्स का भी सर पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ और मेंस का भी काफी सिलेबस बचा हुआ है। ठीक है, और सर तो उस केस में सर कैसे किया जाए? 5th है प्रीलिम्स और मेंस, राइट? बस इतना ही है। सर टाइम मैनेजमेंट का भी, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सर ऑप्शनल का भी क्लास चल रहा है इसलिए। ठीक, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें हैं दिमाग में। और इसके अलावा कुछ ये दिमाग में तो नहीं है क्या पेपर दोबारा पोस्टपोन हो गया तो, है ना? ये भी दिमाग में है, व्हाट इफ देयर इज अनदर वेव और हम लोग इतना प्रिपेयर करें और पेपर दोबारा पोस्टपोन हो जाए। एक दिमाग में अब एक और ये, दिस नॉट यूज्ड टू बी अ क्वेश्चन, बट अब दो लोग स्टूडेंट्स के दिमाग में आने लग गया। हाँ भूमि बताइए बेटा। सर एक क्वेश्चन ये भी था कि सर what is all about this test series is how many test series should we appear and how can we make the best use out of it, like how should we analyze the test after attempting? ठीक है, अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा, आज जो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी टेस्ट सीरीज, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीवन। आपको मैं सिर्फ उस तरीके से बताऊंगा जितना आप लोग इतने सालों में हमारे ऊपर फेथ रखा है, बस उसी फेथ के बेसिस पे हमने वेबिनार करें। ठीक है, क्योंकि आई नो सम ऑफ यू टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली, इसीलिए मैं आपसे कुछ बोलूंगा कि इन फ्यूचर आपको सच पता लगना ही है। ठीक है, तो मार्केटिंग किसी भी तरीके की हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रीलिम्स पे कैसे फोकस करना है ये करें। ठीक है, बिकॉज वाइल टेकिंग दिस वेबिनार, ये भी मैंने इंस्टीट्यूट से भी ये बात बोली थी, एडुब्रिज आईएएस से, आई हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर दैट आई विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग यू, आई विल बी रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ। ठीक है, बिकॉज माई इमेज इज देयर ऑन द पोस्टर, है ना? तो यू ऑल आर ट्रस्टिंग मी। तो पहली बात हम कहां से शुरू करें? सबसे पहले टेस्ट सीरीज से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज हम क्यों लगाते हैं इसका हम लोगों को रीजन ही, रैशनल ही नहीं पता है। व्हाई डू वी गिव आवर टेस्ट? सब स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि पहले हम लोग वी विल फिनिश आवर सिलेबस देन वी विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग द टेस्ट। ये दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स आर मेकिंग, because tests are also part of your preparation. If you are not focusing upon the test, that means you are not able to focus upon the exact preparation that you are doing. आप जो है टेस्ट इसलिए करते हैं so that your preparation is enhanced. ठीक है, first thing, the rationale for giving the test is not to test your performance. आप गाड़ी देखिए, इसका हम एग्जांपल हमेशा देते हैं, आप भी ध्यान रखिएगा। किसी ने गाड़ी बनाई, ठीक है, किसी ने गाड़ी बनाई तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देना चाहते हैं ना आपको, राइट? वो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव क्यों देते हैं? उनको तो यह होना चाहिए पहले आप गाड़ी खरीद लीजिए फिर टेस्ट ड्राइव देंगे, कि एक बार पहले आप गाड़ी खरीद लो, सारा पेपर वर्क हो जाए, फिर हम आपको टेस्ट ड्राइव देंगे। लेकिन नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ देयर सेल, राइट? उनकी सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप भी तो अपने आप को सेल करना चाहते हैं,
यू आर ऑल्सो देयर टू सेल योरसेल्फ टू द यूपीएससी कि देखो हमें कितना अच्छे से आता है. तो ऑफ दैट योर टेस्ट आर पार्ट ऑफ योर एफिशिएंसी. आप टेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि यू वांट टू नो 100 डिफरेंट टॉपिक्स इन 2 hours. आप 2 घंटे में 100 नए टॉपिक जानना चाह रहे हैं. आप ये नहीं देखना चाहते उन 100 में से हमें कितने आते हैं. वो तो while you are reading those 100 questions आपको पता लगा अच्छा 100 में से 50 आते हैं, तो इसका मतलब इन्हें अब हमें दोबारा बहुत ज्यादा डिटेल में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. अब समझिए, आप जब गाड़ी चलाना देखते हैं, जब जिंदगी में आप पहली टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि गाड़ी में बैठने में इंटीरियर कैसे है. ठीक है. लेकिन जब आप अपनी तीसरी या चौथी गाड़ी खरीदते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि भाई टॉर्क कितना है, राइट, हॉर्स पावर कितनी है, यही चीज देखते हैं. क्योंकि आपको अरे गाड़ी किसी ने बनाई तो एसी तो देगा ही, इंटीरियर तो चेंज हो जाते हैं, इंजन इज दी हार्ट ऑफ द कार. यही दिमाग लगाते हैं. ऐसे हम तो टेस्ट देंगे तो है अरे यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पढ़ा हुआ है, इसे दोबारा रिवाइज थोड़ी करना. तो टेस्ट हम इसलिए करते हैं. अब क्वेश्चन आता है कहां से करें. ठीक है, ए बी सी डी, कहीं से भी कोई भी टेस्ट उठा लीजिए. वी आर इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. ओके, वी आर इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. एक बात बताइए, फोन जब खरीदते हैं कंपेयर करते हैं ना, ए फोन ले, बी फोन ले, सी फोन ले, डी फोन ले. ठीक है. लेकिन अगर आप फोन्स देखते हैं तो सब कॉम्पिटिटिव फोन्स में सारे ऑलमोस्ट सेम फीचर्स होते हैं, है ना. ऐसे ही सब टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट द क्वेश्चंस विल बी सेम, क्योंकि ट्रेंडिंग जो करंट में है वो तो सेम ही रहेगा, न्यूज तो सेम ही रहेगी, बेसिक्स तो सेम ही रहेंगे. व्हेन एवरीथिंग इज सेम, व्हाई यू आर हैविंग दिस डाउट कि कौन सी टेस्ट सीरीज करें, है ना. समझ में आ गया. कोई भी एक आप टेस्ट करें. ठीक है, कोई भी एक टेस्ट करें उसको, लेकिन फर्स्ट टेस्ट से लास्ट टेस्ट तक वही करें. इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी टेस्ट सीरीज, डू नॉट डू लाइक दिस कि एक टेस्ट तो जो है ए सीरीज से कर रहे हैं, दूसरा टेस्ट हम बी सीरीज से कर रहे हैं, तीसरा टेस्ट हम डी सीरीज से कर रहे हैं. उस केस में बेटा सिलेक्शन होने के चांसेस भी उतने ही हो जाएंगे जितना आप श्योर है कौन सी टेस्ट सीरीज करने के. समझ में आ रहा है. बिकॉज आपने अपनी प्रिपरेशन, अगर आपको, हम हमेशा एग्जांपल यही देते हैं, ये नया हमने सीखा है, अगर आपको ए जगह से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो सबसे पहले क्या देखोगे, कितना डिस्टेंस है, राइट. डिस्टेंस देखा, आजकल लगाते हैं फोन में मैप्स, गूगल मैप्स खोले, राइट. अब डिस्टेंस देखा, अब यहां से वहां जाने के आपके पास 4 तरीके. डिस्टेंस सेम होगा. गूगल क्या क्या दिखाता है, कार, बाइक, ट्रेन, ओला उबर या कैब, या फिर पैदल. ठीक है. समझदारी किसमें है, समझदारी किसमें है, 1 2 3 4 5, जो भी बेस्ट सूटेबल हो पकड़ लो. ठीक है. सबसे ज्यादा बेवकूफी का काम क्या है, यहां आके यहां पहुंच गए, यहां पहुंच के यहां ये वाला रास्ता ले लिया, यहां पहुंच के ये वाला रास्ता ले लिया. तो जीवन में पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट. कि घर से निकले गाड़ी में, गाड़ी छोड़ के बाइक पकड़ ली, बाइक पकड़ के फिर ट्रेन ले ली, जब बस ले ली फिर कैब लेके पैदल जा रहे हैं, तो जर्नी आपकी टफ हो ही जाएगी. समझ गए. टेस्ट जो है, चाहे 1 2 3 4 5 कोई भी एक टेस्ट पकड़ो, चाहे 20 सीरीज वाला पकड़ो, चाहे 25 वाला पकड़ो, चाहे 10 वाला पकड़ो, चाहे 8 वाला पकड़ो, चाहे 12 वाला पकड़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में सेम है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में सेम रहेंगे. यहां तक समझ में आया बेटा. वी आर टेकिंग ईच क्वेश्चन वन बाय वन. ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है. कोई भी एक टेस्ट सीरीज पकड़िए और शुरू से एंड तक कर दीजिए. लेकिन सबसे पहले हम करेंगे कवर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यूपीएससी के 2000
2011 से लेके 2021 के क्वेश्चंस आपके टिप्स पे होने चाहिए। ओनली 1000 क्वेश्चंस, 10 साल ही तो है। ओनली 1000 क्वेश्चंस, इतने तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज वाला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी करो पकड़ो। एंड टेस्ट बेटा, टेस्ट देने ही प्रिपरेशन के लिए, आप जो 2 घंटे में टेस्ट दे रहे हो वो इसीलिए दे रहे हो कि आप वो नए टॉपिक्स पढ़ोगे। टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, तो यू हैव टू रीड द टेस्ट, यू हैव टू एनालाइज इट। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे जरूरी काम और सबसे जरूरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, आपने टेस्ट में देखा कि क्वेश्चन आया कहां से आया, ज्योग्राफी से ले लेते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया करंट से, ठीक है, करंट से क्वेश्चन आया, आप कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहला काम ये करना है, जहां पे आपने नोट्स बनाए हुए ओशन करंट्स के, वहां पे जाके साइड में एक पॉइंट लिख लेना, दिस करंट इज इंपॉर्टेंट, सो दैट व्हाइल यू आर रिवाइजिंग योर ज्योग्राफी अगेन, आपने वो टेस्ट भी रिवाइज करने शुरू कर दिए साथ साथ। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट के एनालिसिस करने हैं। तो आपको क्या है, फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट एनालिसिस सेकंड एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है, वो आपके नोट्स में ऑलरेडी आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है ना। समझ में आ गया है टेस्ट, वेरी गुड। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, पहला रिवीजन फॉर प्रीलिम्स और व्हाट टॉपिक टू फोकस ऑन। बेटा सबसे पहले बात, सब लोगों को कंफ्यूजन होता है वेदर टू फोकस अपॉन प्रीलिम्स और मेंस, राइट। तो मेंस में हम तभी पहुंचेंगे जब प्रीलिम्स क्लियर होगा। ये एक ऐसा सच है जो कड़वा भी नहीं है, ठीक है, जनरली ट्रुथ इज बिटर, लेकिन ये सच जो है कड़वा भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल जो है सजेशन है कि पहले तो प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, तभी मेंस पहुंच पाएंगे। मेंस की तैयारी करने के लिए अदरवाइज 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, अदरवाइज आपको खुद ही 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप प्री नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो कैसे क्लियर करेंगे प्रीलिम्स। एंड प्रीलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, 10 लाख कैंडिडेट में से 12 लाख मेंस देते हैं, वो 12,000 मेंस देते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं कि सी सेट कर लो इसका, है ना। वेरी गुड, सो फोकस अपॉन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में हम लोग किन टॉपिक से फोकस करें। अब बेटा ये ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60 क्वेश्चंस शॉर्ट, मतलब विदाउट नेगेटिव, 60 क्वेश्चन इज अ वेरी कंफर्टेबल स्कोर, दैट मीन्स 120 मार्क्स, इट इज अ वेरी कंफर्टेबल स्कोर, राइट। वेरी गुड, आप इन्हीं पे फोकस करें। जो कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिनके बारे में आपने 1.5 साल की प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा, क्या गारंटी कि पेपर में आ जाएंगे। इन योर 1.5 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं, जिसके बारे में आपने डिटेल पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब ये भी तो है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। हमें ये जनरली लगता है जो हमें नहीं आता वही सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को यही लगता है, समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे एक बार मेडिवल हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग अरहट, व्हाट आर अरहट्स। स्टूडेंट्स ने मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ डाली, कहीं मिला ही नहीं। अरे एक क्वेश्चन के लिए एक बुक पढ़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, रादर देन जो आपको आता है उस 60 में से ही आपने शॉर्ट क्लियर करे तो भी सिलेक्शन हो रहा है। अगर ऐसा होता कि 100 में से 99 करेक्ट में भी सोल्यूशन नहीं होगा, 100 करेक्ट करने हैं तभी होगा, तो हम बोलते हैं हाँ सारे टॉपिक्स पढ़िए, ठीक है। फोकस ओनली अपॉन टॉपिक्स दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, understood? You do not have to focus upon, you have to dig deep into those topics that are frequently asked. सबसे बड़ी एग्जांपल इस चीज का है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। इसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ गया
For example, a question has come from awards this year. क्या गारंटी अगले साल आएगा? Right? There is no guarantee. And how many questions were there from sports? 3 questions. लेकिन बाकी क्वेश्चन तो और टॉपिक से आए हैं ना, तो जिससे गारंटी आए वो उस पे फोकस कीजिए, rather than those topics which you don't or which you are not aware. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन. रिवीजन फॉर प्रीलिम्स. बेटा प्रीलिम्स को रिवाइज करिए, उसका सिलेबस देखिए. कितने लोगों ने आज तक प्रीलिम्स का सिलेबस देखा है? ओके, बाकी yes, this lecture will be uploaded on YouTube, do not worry. Okay, but how many of you have seen the prelims syllabus? Tell me. बाकी सब चीज छोड़ो, बाद में करेंगे बातें. प्रीलिम्स का सिलेबस कितने लोगों ने देखा है? 1, बाकी 2, बाकी लोगों ने. हमें क्या मतलब है ना? 3, 4, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिलेबस. ठीक है, पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, बाकी चीजें अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगी. ओके, let us look at the syllabus of prelims so that you know what to focus upon, what not to focus upon. Is this screen visible to you? So let us go look at the syllabus of prelims. The prelim syllabus talks about Indian polity. हमारा subject से पहले लेंगे Indian polity and governance, constitution, political system, पंचायत राज, public policy, rights issues, etc. Mains का आधा syllabus कट गया, right? Mains का आधा. Ashwini बेटा, you have a doubt? Or you are telling you have seen the syllabus? Yes, tell me. So I'm just saying that I've seen the syllabus. Okay. Okay. So Indian polity, this is the syllabus. Then we go to the geography. In geography, the syllabus is India and the world geography in this physical, social, economic geography of the India and the world. Okay. Then the syllabus is about the history. The history talks about history of India and the Indian national movement. It means some topics that are mentioned clearly that will be definitely asked. It means the question will come from the Indian national movement. That means the question will definitely come from the political system, Panchayati Raj, rights or public policy. The question will definitely come from the issues on kitna bhi aap pad le, but you have to focus on ecology separately, biodiversity separately, climate change separately. Right? Because these are separately mentioned in the syllabus. Similarly, in economics, you have to focus upon sustainable development, poverty, inclusive policies, demographic and social sector initiatives. Then in general science, you just need to know about the general science. That means as a lay person. And current affairs is nowhere mentioned in the syllabus. The syllabus says current events of national and international importance. Something that you need to notice here, that in the prelims,
ethics, integrity, and aptitude is not the part. In the prelims, world history is not the part. In prelims, internal security is not the part. In prelims, disaster management is not the part. In prelims, post-independence history is not the part. Social issues is not the part. International relations as a whole is not the part. Only limited topics, not clearly written in the syllabus. Social justice is not the part. Right? So while you are revising for prelims, do not revise those topics that are not in the syllabus. For example, do not focus upon ethics during the prelims preparation. Do not focus upon world history during the prelims preparation. Do not focus upon disaster management and internal security during the prelims preparation. Do not focus upon post-independence history in the prelims preparation. Do not focus upon the answer writing in the prelims preparation. Only have a point of view that can make you identify the options. Revision में समझ गए? I'm not saying do not revise. I'm just saying only revise that is there in the syllabus. Something which is not in the syllabus of prelims, do not revise that during the prelims preparation. Are we clear? This topic is also clear for us. Now the other question that we have in our mind is, if you have not read geography, right? This is the question. You have a doubt. If you're not read geography, what to do? Okay. So the focus point is only focus upon those which are your strong points. Right now, it's not the time to focus upon your weak points. Okay. The time to focus upon the weak points is gone. Just make this subject comfortable to an extent that you can attempt an easy question from that topic. उसे इतना अच्छे से कर लीजिए कि कोई easy question आएगा तो we can very easily attempt from that. Otherwise कोई दिक्कत नहीं. ओके. फिर होता है टाइम मैनेजमेंट. बेटा अब सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि कितना टाइम बचा है? 5 जून को है, तो फरवरी से अगर हम लेते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने बचे हैं. मार्च, अप्रैल, 5 मार्च तक 1 मंथ, जून, 4 ओनली लेफ्ट. 4 मंथ बोले तो हाउ मेनी वीक्स डिसाइड करेंगे? अप्रोक्सीमेटली 16 वीक्स, राइट? कितने टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में? 7. ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 15 days for a topic. That's it. That's it. क्योंकि इस बीच में बेटा होली भी है, इसी बीच में नेशनल फेस्टिवल भी है ना? तो 2-4 दिन उसके आगे पीछे भी जाएंगे. सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली हम लोगों को सोचना है, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली 15 days पर टॉपिक. टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से करना है, वो भी हम आपको बताएंगे. अब लास्ट में आता है क्वेश्चन करंट अफेयर्स. कैसे प्रिपेयर करना? कितने लोगों को इस चीज पे डाउट है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स? वेरी गुड वन. बाकी सबको कोई दिक्कत? 2, 3. उसके लिए लेट मी शो यू एन इमेज. ओके, लेट मी शो यू एन इमेज. उससे आप लोग बताइएगा करंट अफेयर्स कितना जरूरी है, ठीक है? किसी ने और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीसेट, और आज के टाइम पे बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन बन चुका है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीसेट, राइट?
Is this screen visible to you? Visible to all? Very good. Let us see the questions that have been asked in UPSC from various subjects. Okay. In 2021, 14 questions are asked from geography, 9 questions previously, and 12 questions in the previous year. Approximately, let us say 10 questions from geography. Okay. Then environment ecology every year, 10, 15, 21, approximately 15 questions every year. Right. Economy 28, 19, 15. So approximately 20 questions every year. Right. Science and technology 11, 19, 12. So approximately 13 to 14 question every year. Then history, art and culture 15, 20, 20. So approximately 18 question every year. Right. Polity 16, 20, 20. So approximately 18 question every year. Right. Very good. Current session 4, 0, 0. Oh my God. So tell me how to prepare current affairs. I'm not saying not to prepare for current affairs because 4 questions came from current affairs. But that does not mean that current was not asked in the paper. Current was asked from geography, environment, economy, science, tech, history, art and culture, and polity and IR. Questions are asked, but not from the current affairs, but the current developments of these topics. The questions were asked from the current developments of these topics. It means we do not have to study current affairs. We have to study the basic subjects and then complement them with the current affairs. So सिर्फ current affairs पढ़ के बच्चों आप लोगों का selection नहीं हो सकता. आप लोगों को you have to study basics and that basics is complemented with current affairs preparation. Okay. अब इसी डेटा से you can very easily identify that the important topics are polity, history, geography, environment, ecology and science tech. उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी नहीं आ रहा है. ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने अगर कुछ खाया तो कहां से बाहर जाएगा, नहीं पूछ रहे हैं, है ना. दैट यूज्ड टू बी इन दी प्रीवियस टाइम्स. अब सिलेबस में आता है आपने अगर कुकर पे लगाया कुछ सामान तो लिड जो है, विसल जो है, क्यों नहीं उठ के हवा में घूम जाती है या फिर विसल क्यों उड़ जाती है. अब दिस इज प्रैक्टिकल नॉलेज. उसके लिए आंख कान खुले रखने होंगे. राइट. वो पढ़ के नहीं आ सकता. कितनी भी किताब पढ़ लो नहीं आएगा. किस किताब में लिखा था? किताब में ये लिखा हो सकता है कि एक प्रेशर कुकर की विसल का साइज वेट कितना होना चाहिए, ये लिखा हो सकता है ना. प्रेशर कुकर की विसल कैसी आवाज करती है, उसकी साउंड ऐसी साउंड आ सकती है. लेकिन वो क्यों उड़ती नहीं है, कब उठती है, वो उसके लिए क्या है. दिस इज प्रैक्टिकल नॉलेज यू नीड, है ना. समझ में आ रहा है. और उसके लिए आंख कान खुले रखेंगे और क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है. इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना. क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा. ठीक है. the clarity in the question reading will automatically reduce your negative. सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करें, किसी ने नहीं पूछा. राइट. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन, हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग. इसका सबसे बढ़िया चीज है, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हमें चाहिए, कल क्या कर रहे हो, what you are doing tomorrow. What you are doing tomorrow, right? अब कितने लोग हैं जो इसका आंसर देना चाहते हैं? Will be studying as a daily routine. Very good. ठीक है. बाकी सब अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो? ये रीजन बताइए. Why you are not attempting this question? कि what you will be doing tomorrow? Why you are not attempting this question?
Not sure? Not sure, question is not clear. अब हम आपसे क्लियरली क्वेश्चन पूछे, क्या कल आप एक रिवीजन क्लास अगर हम रख लें तो क्या आप लोग अवेलेबल हो इन द इवनिंग 7 PM? अब कितने लोग इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं? बेटा ऐसा हो नहीं रहा है, हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? कल वीकडे है, कल तो ऐसे भी टाइम नहीं है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? कभी कल नाराज हो जाओ सब हमसे कि आपने वादा किया था क्लास नहीं लिया. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल that now if I ask a question that if I take a revision class tomorrow at 7 PM, will you be available? तो अब इसका आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, right? Why you are doing this? Because now the question is clear to you, है ना? Question is clear to you. लेकिन अगर पिछले क्वेश्चन में हम पूछते कि कल आप लोग क्या कर रहे हो और आप में से कोई बोल देता कुछ नहीं, है ना? कोई बोलता था कुछ नहीं, तो हम बोलते हम बोर हो रहे थे रजाइयों में जो है रुई भरवाने चलना है, चलो हमारे साथ. फंस जाते हैं ना, फंस जाते. क्या हो गया? नेगेटिव मार्किंग हो गई, नेगेटिव मार्किंग हो गई ना, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज नॉट क्लियर टू यू. जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, मार्क्स मिले ना मिले, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, जब क्लियरिटी आई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शंस नहीं देखने, वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस, वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस. जब क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तब ऑप्शन चाहे आपने कभी ना देखे हो, फिर भी यू कैन गिव द आंसर. समझे? समझे? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? वेरी गुड. अब क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करनी है. तो व्हाइल यू आर रीडिंग दैट सब्जेक्ट, तभी उसके करंट अफेयर्स साथ में पढ़े. करंट अफेयर्स इज नॉट अ सब्जेक्ट. करंट अफेयर्स इज नॉट अ सब्जेक्ट. एक बात सबसे पहले दिमाग से ये निकालिए कि करंट अफेयर्स सब्जेक्ट नहीं है. करंट अफेयर्स आर the subjects that you are already reading as basics. पॉलिटी में कुछ करंट अफेयर्स आए तो वो तो पॉलिटी ही है. इकोनॉमी में कोई करंट अफेयर्स आए वो तो इकोनॉमी ही है. तो फिर करंट अफेयर्स अलग से क्यों पढ़ते हो? अब एक बात बताइए, हम हेयर कट करा के आए, है ना? हम हेयर कट करा के आए, तो हेयर कट के साथ हम ही तो आएंगे. ऐसा तो नहीं बाल आ रहे और फिर लोगों से बोलोगे अरे ये किसके बाल है, पहचानने में मुश्किल तो होगी ही, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि और आप बोलोगे ओहो बड़ा मुश्किल है, कहां से पता लगा ये बाल किसके हैं? डीएनए टेस्ट कराने पहुंच जाओगे, क्योंकि अरे यार बड़ा महंगा होता है पता लगाना. तो इजी तरीका क्या है, जिसका हेयर स्टाइल वो भी इंसान साथ में आता है. ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका है, जो सब्जेक्ट है उसके करंट अफेयर्स उसके साथ पढ़ने. जो सब्जेक्ट है उसके करंट अफेयर्स you have to read with that subject itself. Do not have this misconception that current affairs is a separate subject. Is it clear? समझ में आ रहा है? Very good. अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले ध्यान लगाइए, at one time only study one subject. Okay? आप लोग AB डिविलियर्स नहीं है तो कि आप एक टाइम पे सब कुछ कर लेंगे, कि हम बैटिंग भी, बॉलिंग भी, ओलंपिक्स में भी लड़ लेंगे, सब कर लेंगे, राइट? एट वन टाइम स्टडी वन सब्जेक्ट ओनली, एंड दैट सब्जेक्ट यू कैन नॉट स्टडी फॉर मोर देन 5 to 6 days एट अ टाइम. सो 6 days, every 6 days change the subject after giving a test. Every 6 days change the subject, give a test. So that you are giving a test also and you are changing the subject. 6 days में जितना वो सब्जेक्ट खत्म हो पाया उतना ही पढ़ना है, उसके बाद उस सब्जेक्ट को छोड़ देना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाना है. इससे क्या होगा, कितने टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास? 6 6 36, करंट अफेयर्स आर इंक्लूडिंग. इन 36 days you are going through all the subjects. अब दोबारा टर्न जो आ गई उस सब्जेक्ट की, इट हैज कम आफ्टर अ मंथ.
So at least you will have something in your mind while revising that subject. Otherwise, if the turn of that subject is coming after 3 months, तो दोबारा आपको बेसिक से शुरू करना पड़ता है ना, है ना, है ना? Very good. Plus, when you are having this second term, जहां से छोड़ा था वहां से पढ़ना है, दोबारा शुरुआत से नहीं. ये नहीं कि फंडामेंटल ड्यूटीज तक तो बहुत अच्छे से पॉलिटी आती, बाकी सारे आगे डब्बा गोल, राइट? बिकॉज you have to complete the syllabus, right? ये चीज समझ में आई है? वेरी गुड. दिन में कितनी देर पढ़ना है? बेटा सिर्फ पढ़ना ही है, उसके अलावा कुछ और काम ही नहीं करना है ना? जैसे मूवी सीरीज बिंज वॉच करते हो, तब कभी किसी से पूछा कि बिंज वॉच करने के लिए कैसे टाइम मैनेज करना है? ये बताओ, कभी किसी से आज तक सजेशन लिया, गूगल पे सर्च किया हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट फॉर वॉचिंग अ सीरीज? बताओ. टाइम मैनेजमेंट अभी पेपर आने वाला है, ठीक है? बाकी जो जरूरी चीजें उसके अलावा जब भी टाइम मिले पढ़ना ही है. ये सबसे बड़ी बेवकूफी है. पढ़ाई के लिए माहौल चाहिए होता है. बेटा माहौल पढ़ाई के नहीं, पार्टी के लिए चाहिए होता है. पढ़ाई के लिए कोई माहौल नहीं चाहिए, समझे? क्योंकि आज राइट नाउ यू ऑल हैव द पीडीएफ ऑफ एवरीथिंग अवेलेबल, ठीक है? सो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल लीजिए कि माहौल बनाना है, माहौल के चक्कर में टाइम निकल जाएगा. एक ये चीज छोड़ दीजिए, दिन में इतने घंटे पढ़ना है, जितने मन करे उतनी देर पढ़िए, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना ही है. I wanted to identify that by a stopwatch. स्टॉपवॉच मोबाइल फोन वाली नहीं, बाय अ स्टॉपवॉच. पहली बता दे डिस्क्लेमर, हमारी कोई स्टॉपवॉच बनाने की फैक्ट्री नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि स्टॉपवॉच सामने रहती है, तो देन यू विल हैव अ क्लैरिटी कि हाउ मच टाइम यू हैव एक्चुअली स्टडीड. मान लीजिए हम पढ़ने बैठे, स्टॉपवॉच ऑन करी, 10 मिनट बाद सीसैट कर रहे थे, वहां पे क्वेश्चन आया फाइंड एक्स. बस फिर तो ख्यालों में खो गए. अरे कहाँ मिले वो, तो जब से गए धोखा दे के मिल ही नहीं पाए, भटक गए आप लोग. अब ख्यालों में घूम के आए हैं, पहली बार जब उन्हें देखा था और जब तक कटा था पूरी पिक्चर हो गई. स्टॉपवॉच में देखा टाइम, 2 घंटे निकल गए, मन को सेटिस्फेक्शन लगा, अरे 2 घंटे पढ़ लिया. लेकिन हाउ मच टाइम यू हैव एक्चुअली स्टडीड? 10 मिनट्स. तो स्टॉपवॉच इसलिए, द मोमेंट फाइंड एक्स आए और जैसे आप भटकते लग रहे, स्टॉपवॉच रोक दीजिए. देखिए उनके ख्यालों से नहीं रोक रहे हम आपको, पूरा घूम गया ये ख्यालों में, बट एटलीस्ट हैव अ रियलिटी टेस्ट that you have studied only for 10 minutes. So you will have that guilt feeling that night, even though I was sitting for 2 hours, I have to sit for 1 hour 50 minutes more. Okay? पहली चीज. दूसरी चीज, दिमाग में अगर बैठा लिया है 2 घंटे बैठना, 2 घंटे बैठना है, चाहे कुछ नहीं कर रहे हैं. If we are sitting, we have to sit, even if you are not doing anything, given that your phone is not with you at that time. Just sit, look at the book. I'm not saying if you don't feel like studying, study. Sit for that 2 hours. If you are sitting, at least you will be studying for 45 minutes. ना से तो कुछ तो अच्छा. Plus, जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो what will you be doing? बताइए. When you don't feel like studying, what you will be doing? बताओ. Phone. Very good. When you don't feel like studying, सो जाओ. Best way. Because when you will wake up, you will be fresh. If you are feeling sleepy, what you will be doing? Sleep. Because you are feeling sleepy. Sleep. If you are feeling sleepy, don't drink tea. Drink tea when you feel like drinking tea. Okay? Okay? So have your concepts very clear. Have your concepts very clear, and the time is management is that when you wake up till you sleep, you should know that you have given only 6 days to this subject. So you know, if today I have not completed this much portion, after the 6 days I have to leave that subject.
and while I'm going in the examination, my topic will be left. Right? बस यही आपको सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, अपने आप आपका टाइम मैनेज हो जाएगा. If you have to finish M. Lakshmikant in 6 days, automatically you will be forced to read 50 pages a day. And when you are reading 50 pages a day, that is sufficient for you. Right? Are we clear? Any other doubts we have from the prelims preparation? This is what I have to, how to increase self-confidence. But you do not need to increase your self-confidence, because right now your confidence should be low. तभी तो आप लोग पढ़ोगे. ठीक है, बाकी हम तो हैं, you all can contact me. जब आपको लगे कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो हम बताएंगे, कॉन्फिडेंस बनाना है. और जिस दिन लगे कि हाँ पक्का प्रीलिम्स तो यूं निकल जाएगा, उस दिन तो फोन करना, मैसेज भी नहीं. ठीक है, हम अपने आप डिमोटिवेट कर देंगे. द मोमेंट यू विल फील कि वी आर क्लियरिंग प्रीलिम्स यूं, ठीक है, तो कॉल करना, बिकॉज दैट इज मोर डेंजरस. हैविंग लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देखो यूपीएससी तो वीडियो बना के बेइज्जती तो करेगा नहीं कि हाय तुमसे प्रीलिम्स नहीं निकला. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि नॉट क्वालिफाइड. उससे ज्यादा क्या है. लेकिन अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं दैट यू विल नॉट बी क्वालिफाइड. पढ़ो, इंजॉय करो टॉपिक्स को. टॉपिक्स को एंजॉय कैसे करना है, ये हमसे जो आप लोग कभी पढ़े होगे या पढ़ोगे समझ जाओगे. हाउ टू एंजॉय द सब्जेक्ट्स. You should know how to enjoy the subjects. Okay? And if you are having low self-confidence, it means you do not have a good peer group. You must be having a good peer group, and the online education is taking away that peer group. Earlier, students used to study and compete together, and that increased their confidence because the peer group was asking questions, right? Right? And that is why you must keep in contact with your mentors, right? Yes, Bhumi. Sir, a query tha regarding revisions. I'm not sure if this happens with everyone. Sir, what happens is when we are revising the same topic, एक माइंड में वो फीलिंग आने लगती है कि अरे ये तो आता है, अरे ये तो आता है. तो क्या होता है, वो एक रिवाइज करने में इंटरेस्ट नहीं आता है. ऐसा लगता है कि इसको तो छोड़ देंगे, ये कर लेंगे. However, that is not the reality. मीन्स वो फोकस्ड रिविजन हो नहीं पाता है. हाँ तो बेटा देखिए, इसीलिए अंडरलाइनिंग जो सिस्टम था ना, कंसेप्ट अंडरलाइनिंग हाईलाइटिंग, वो इसीलिए होता है दैट हाईलाइट ओनली दोस टॉपिक्स दैट यू आर रीडिंग. फॉर एग्जांपल, अर्थ कैसे कैसे डिवाइडेड है. जब आपने पहली बार कभी पढ़ा होगा तो ऐसे गोला बनाया होगा, इक्वेटर बनाया होगा, ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर बनाई होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाया होगा, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक बनाया था ना. अब क्या होता है, डायग्राम देखते हैं, हाँ ठीक है आगे बढ़ो. रिवीजन करना ही ऐसे है दैट व्हाइल रिवाइजिंग फॉर सेकंड टाइम you are identifying that third time which words I will be reading only. You will be only reading words on pages. In first revision you should be reading the whole text. In second revision you should only be underlining the important points. In third revision you should only be reading the important points. In fourth revision you should only be reading the important words. And while doing the fourth revision, make a crisp notes of those topics. कि ये words important है, that will help me remind everything. Okay? Understood? This is how we should be revising. And इसीलिए एक कोर्स अब थोड़ा सा कर भी देते हैं. देखो जो बता दिए. एक कोर्स आ रहा है एडुब्रिज IAS का ही, 1st Feb से tentatively they are beginning, given that all the team is recovering from COVID, because सबको कोविड, हमें भी, I am also COVID positive, अभी टेस्ट कराना है. ठीक है, तो depending upon the recovery of the team, and tentatively it will be beginning on 1st of February. and इस कोर्स की कुछ हाइलाइट्स आपको बता देते हैं कि लाइव क्लासेस रहेंगी डेली, and recorded lectures भी available होंगे, because some students they want to listen to it again, right? Some students want to
or everyone have their different speed of learning. Daily practice questions will be provided. Those practice questions will be covering the coverage of the previous year questions. It means daily you will be covering every previous year questions from that topic, from 2011 to 2021. The notes will be provided for all the subjects, and for the students who are joining this complete course, they will be given the access to the live classes of current affairs that will be taken by me only. Okay, the subjects that will be taken by me, polity that will be taken by me, current affairs will be taken by me, environment and ecology depending upon the availability, because we are also looking for the subject experts so that you get more better insights. Okay, Baki, for the other topics, history and geography will be taken by Vishal Singh sir. He is also a renowned faculty. And other subjects, economics will be taken by Webber sir, and science and technology will be taken by Webber sir. Okay, we have a comprehensive team. This initiative is not the first time that we are starting. This will be the third year of this initiative. In the first year, out of the 15 students, 8 students clear prelims from this initiative, right? When it began. Previous year, the members of the initiative got 72 rank. We're not saying that they cleared prelims. The member got 72 rank. Other member got 302 rank. Okay. So the result is good. Why? Because there is a dedicated approach. Second thing, this year, we are also coming up with an initiative of mentoring. It means the students who will be joining the course, they'll be given an option that amongst the faculties, with which faculty you want to have the direct contact till the prelims examination. So that every week you can have a connect with that faculty over the call. Every day you can ask your doubts with that faculty, so that you will have a continuous mentorship. Otherwise, this is the problem students have, whether to do this or not, whether to read that or not. And with this initiative, the moment that doubts is coming to your mind, you will get that doubt resolved. So there will be a regular hand-holding, right? And the number of students will be limited. Jitna number of students are seen in this screen, okay, that will be the only strength of the class. This is the maximum strength of the class. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 will be the maximum strength of the class. So that while taking the class, the students are not lost in the screens, right? Because that will be a focused approach. And the crash course is all about the focus on the preparation, right? Okay. So what I had to tell on my behalf, I have told you. What the institute asked me to tell, I have told that on their behalf also. Okay. If you have any doubts, yes. See, if you want from my side, I'll there to provide you the maximum help, right? For CSAT, but the best way of doing CSAT is attempt the CSAT paper 2021. See how much marks you are getting in 2 hours. If you are getting 100 plus, don't need to prepare for CSAT separately. Just attempt 2 or 3 papers before the examination. If you are getting approximately 70 to 80, then you have to practice some papers of CSAT. If you are getting less than 50 or you are getting around 60, then you have to have dedicated preparation of CSAT. So first you must know what is the level of CSAT preparation. Then only go for anything in CSAT. First you should know, because it is a qualifying paper, but it has become a deciding paper also. Okay. Are you clear? Very good. Then the question is, Mukit, yes, beta, you can do that. Okay, you can do that. For that, you either contact me separately or you can contact the official numbers that are provided. Okay, that can be done. Any doubt now we have? If you have any doubt,
Also, the institute provides that for every reference, for every student who will be joining through your reference, 5% discount, cashback, sharing, whatever you feel like. You want to take the cashback of 5% from your fees, you can take that. You want to distribute it amongst your friend, 2.5, 2.5, you can do that. You want to give that discount to your friend, you can do that. Okay, for every reference you suggest. Then timing of the class, timing will be 99%, it will be in the evening. Okay, because working students will also be joining. There are some working students, that is why the timing will be in the evening, right? And we will be trying to cover the maximum syllabus by 15th of April, except the current affairs, because current affairs we want to cover them till the last day, and we do not know about the exam date. Okay, so the current affairs will begin 1 month before the admit card is released, so we'll have an idea, and according to that we'll speed up our current affairs preparation, right? This is the responsibility from my side, because I take the current affairs, that whenever the exam is, current affairs will be covered 1 month before the exam, even if it is postponed, the current affairs will be covered 1 month before the examination. It's not that you are joining keeping in mind the exam is in June and we'll cover the current affairs. We will cover the current affairs 1 month before the exam. Current affairs, you can join. The complete course also you can join. Okay, but those who are giving in 2022, just focus upon your preparation, because अगर आप इससे delay कर देंगे तो you will be losing a lot of time. Are we clear? कोई और डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल टू यू. ऐसा नहीं है कि आज आप नहीं पूछ पाएंगे तो बाद में भी नहीं पूछ पाएंगे. आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल. बेटा डू नॉट लीव न्यूज़पेपर रीडिंग. न्यूज़पेपर तो पहले दिन जब पेपर देने जा रहे हो उससे भी एक दिन पहले फ्रंट पेज देख के जाना है, बिकॉज समटाइम्स यू गेट लकी. जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने उस टाइम सोच के बनाए थे वो क्वेश्चन न्यूज में भी आ जाते हैं. इसका एग्जांपल बताते हैं. 2017 में एक क्वेश्चन था दैट फ्रॉम टू विच फ्रॉम गिर नेशनल पार्क टू विच नेशनल पार्क लायंस हैव बीन रिहैबिलिटेटेड, राइट. वो बहुत पहले न्यूज में था, लेकिन पेपर से 2 दिन पहले वो दोबारा न्यूज में आ गया और क्वेश्चन आ गया. तो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखा था, they could attempt that. Okay, so read at least look at the front page daily. Okay, and do not leave newspaper reading. चाहे रात में करे, लास्ट में करे, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना. दूसरा, मोटिवेटेड रहना है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिलेबस देर से कवर होगा. 100% सिलेबस खत्म कभी नहीं होता है. 100% सिलेबस कवर करने के पीछे भागेंगे तो होपलेस ही होंगे. ठीक है, बुक पेज फ्रंट पेज टू लास्ट पेज कभी नहीं बुक पढ़नी होती है. ठीक है, फ्रंट पेज टू लास्ट पेज तो आप स्टोरी बुक नहीं पढ़ते, सिलेबस की बुक तो छोड़ ही दो, है ना. स्टोरी बुक में भी इंट्रोडक्शन भूल जाते हो, छोड़ देते हो ना. बताओ, अरे ग्रे के कितने शेड्स थे जब पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस किताब का. 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ी हो या बाल नरेंद्र पढ़ी हो, ये सब तो पढ़ी होंगी. एग्जाम वॉरियर पढ़ी हो, है ना, चेतन भगत की बुक्स पढ़ी हो. इंट्रोडक्शन तो कहीं नहीं पढ़ते, तो पेज टू पेज कभी नहीं पढ़ना होता. यू हैव टू डू द सिलेक्टिव रीडिंग. वो सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है वो तो हम आपको हमेशा बताते ही हैं जब भी हम कुछ सब्जेक्ट लेते हैं, राइट. वेरी गुड. कोई और डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज विल कंक्लूड. आई होप सारे आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड डाउट्स हमने कवर कर लिए हैं. जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग स्टूडेंट्स भी कीप दिस इन माइंड दैट व्हाइल यू आर कमिंग बैक होम, गोइंग ऑफिस, आप तब यूटिलाइज करें. प्लस ऑफिस जाने से पहले मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करने की कोशिश करें. ऑफिस से आने के बाद ना पढ़े, क्योंकि थक जाते हैं, बॉडी बिल्कुल थक जाती है और पूरे दिन की टेंशन भी दिमाग में रहती है.
जो भी वर्किंग है, दिस इज अ वेरी जेन्युइन सजेशन कि ऑफिस जाने से पहले पढ़ाई करें, ठीक है। जैसे अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें सुबह के 2.5 से 3 घंटे आप सुबह पढ़ें। अगर आपकी शाम को शिफ्ट है तो शाम को पढ़ के जाए। इट्स नॉट अबाउट मॉर्निंग एंड द इवनिंग, इट्स अबाउट बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। इट मींस आफ्टर ऑफिस स्लीप एंड व्हेन यू वेक अप देन स्टडी। हाँ जी शमित। सर ये कह रहे थे जो कोर्स स्टार्ट होगा सर, उसमें आप पॉलिटी का क्लास ले लेंगे तो उसमें सर थोड़ा बताते ना, मीन्स किस तरह से रिवीजन करवाते हैं। एक पूरा सिलेबस तो सर कवर नहीं किया जाएगा, जैसे मतलब कोर्स फाउंडेशन में करते हैं, तो वो सर मतलब जब रिवीजन होगा तो वो मतलब किस टाइप से होगा? हाँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सब बताएंगे, ठीक है। उसमें तो जैसे जो बताया ना, जो एनरोल स्टूडेंट उनकी तो मेंटरशिप भी रहेगी, ठीक है, मेंटरशिप रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज टॉपिक खत्म हो गया तो उसके बाद नहीं, उसके बाद आप लोगों का पूरा हक रहेगा। हक मतलब ये नहीं कि 2 बजे कह रहे हो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, आई हेट यू, ये सब नहीं, लेकिन इतना हक रहेगा दैट योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। आंसर नहीं, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं ना, नाराज हो जाते हैं, 5-6 मैसेज भेजेंगे, सुबह तक रिप्लाई नहीं, तो दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड। उनको लगता है कि हम दोबारा पूछेंगे क्या भेजा था, है ना। तो इतना नहीं, लेकिन द mentorship means the answers will be provided within that day itself or the ASAP, as soon as possible, and every day you can schedule a call with the, every week you can schedule a call with the faculty in charge, ठीक है। Is it clear? Any doubts other than this? If you have in your mind, you can ask your doubts. Okay, बता दीजिए। सर We'll give टेस्ट सीरीज को लेके ही सर। बताओ। सर टेस्ट सीरीज जो कर रहे थे तो सर लाइक हिस्ट्री का कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे थे, तो जो सिलेबस था वो अपने अकॉर्डिंग वो रीड कर लिए। उसके बाद फिर जो टेस्ट सीरीज लगाए तो उसमें काफी सारा न्यू मिला, तो फिर मतलब उसको कवर करने के कारण फिर से पढ़ना पड़ा। और नहीं, फिर क्यों पढ़ा? टेस्ट सीरीज, जब टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन भी तो आते हैं, वो सॉल्यूशन पढ़ लो, बहुत है। टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन पढ़ लो, बहुत है, बस। अब दिक्कत पता है क्या आ जाती है, यू आर रीडिंग अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर, 100 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, तो उन्हें 100 क्वेश्चन बनाने के लिए डिटेल में तो जाना ही पड़ेगा। फॉर 100 क्वेश्चंस दे हैव टू गो इनटू द डिटेल्स। तो अब उनके पास तो मजबूरी है, रिपीट भी नहीं करना है, आप ही ने चूज करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा फुल टेस्ट कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक करेंगे तो वो तो डेप्थ में जाएंगे ही, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाना होता है। अच्छा एक बात बताओ, कितने साल से आप लोग पढ़ रहे होगे पॉलिटी? 2-3 साल तो हो गए होंगे, है ना। चले 1 साल हो गया, 1 साल तो हो ही गया। कौन सा ऐसा केस है जो बहुत बार बार सुना है? बेरूबारी यूनियन तो सुना होगा, बेरूबारी छोड़ दो, केशवानंद भारती तो सुना होगा। वेरी गुड। किस लिए कोर्ट में गए थे केशवानंद भारती? ये नहीं कर फिर क्योंकि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू बी नोन एज अ स्टूडेंट ऑफ जनरल स्टडीज, बट इन टेस्ट सीरीज यू मे गेट दैट एज अ क्वेश्चन। केशवानंद भारती जो है कौन से टेम्पल में महंत थे? This is not the ambit of the general studies, but this may be asked in the test series because you opted for subject specific questions. They gave you choices. Everyone gives you choices. Full test or topic wise? You said yes, topic wise. Okay, take questions. Understood? Because you want to study in depth, but UPSC is not asking questions in depth. UPSC has clearly provided the subject as general studies. Read it generally, but that general knowledge or of the general studies shall be very conceptually clear. Okay, conceptual clarity बहुत जरूरी है, and horizontally maximum coverage चाहिए, vertically नहीं। horizontally जितना ज्यादा चीजों के बारे में जान सकते हो उतना ज्यादा चीजों के बारे में जानिए।
कि अगर पद्मश्री किसे पूछ लिया तो तीनों टाइप के पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के बारे में जान लेते हैं, और मिलिट्री जो होते हैं परमवीर चक्र, शौर्य चक्र के बारे में जान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कवरेज ले। अब ये नहीं जानना है कि अच्छा पहला पद्मश्री किसे मिला था, आज इस साल कितनों को मिला है, क्योंकि पूछा ही नहीं है ये। जनरल, यू गेटिंग अ पॉइंट? जनरली पढ़े, ठीक है। हाँ जी बेटा। सर मुझे पूछना था कि गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज होती हैं उनको किस तरह से कवर करेगी? वो बहुत ज्यादा होती है और जरूरी नहीं है कि इस साल की हो, वो 2-4 साल पुरानी भी हो सकती है जो इम्पोर्टेंट हो, तो वो बहुत जितनी बेटा टेस्ट सीरीज में, जितने टेस्ट में पूछी जा रही है उतनी बहुत है, पढ़ लो। उतनी भी आप याद कर लोगे वही बहुत है। कुछ जो है बेसिक्स यू मस्ट नो, मनरेगा के बारे में यू मस्ट नो, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के बारे में यू मस्ट नो, और द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में यू मस्ट नो, मिड डे मील स्कीम, नेशनल, दिमाग से निकल गया, अरे आरटीई, राइट टू एजुकेशन के बारे में, आरटी एक्ट के बारे में यू मस्ट नो, दीज सम बेसिक्स यू मस्ट नो। स्कीम रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, ये तीनों के स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ओके, ये तीन स्कीम से ही क्वेश्चन 90% पूछे जाते हैं, ओके। हाँ जी। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर ये जो आपने अभी डेप्थ का बताया है कि कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हम कितनी डेप्थ में जाना है उसमें, तो सर ये फिल्टर मतलब करंट अफेयर्स के लिए कैसे लगाएं? करंट अफेयर्स में भी कुछ, जैसे एक मैगजीन को अगर फॉलो करते हैं तो एक कोई पर्टिकुलर इशू को लेकर उसमें काफी डेप्थ में चीजें दी हुई होती हैं। हाँ, उसको क्योंकि कितना, वो आपको बैकग्राउंड बता रहे, वो टॉपिक दोबारा अगले महीने पढ़ोगे तो भी वही चीज होती है उसमें सेम। 10 साल बाद भी पढ़ोगे तो वो चीज होती है। दे आर जस्ट गिविंग यू द बैकग्राउंड, ओके। तो सर उस चीज को हमको पूरा मतलब वैसे को वैसे ही पढ़ना है, या फिर उसको सब्जेक्ट के पैरेलल लेके ऐसे पढ़ें कि हमको सब्जेक्ट के बारे में जितना पता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो बस उतना ही। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है डब्ल्यूटीओ से, जितना आपने इकोनॉमिक्स में डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा है सफिशिएंट है, उसमें बस थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है इंडिया ने 5 साल के लिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी बस, और डब्ल्यूटीओ के नॉर्म से है कि नहीं है, बाकी किस किस प्रोडक्ट पे क्या कहते हैं डेप्थ में नहीं जाना। अगर आ भी जाएगा क्वेश्चन में तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी लॉस, क्योंकि कोई भी नहीं कर पाएगा, बहुत कम लोग हैं जो कर पाएंगे, और जो वो कर पाएंगे उनको बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतने डेप्थ में चले गए हैं इकोनॉमिक्स में, दे मस्ट हैव हैड अ ट्रेड ऑफ समवेयर एल्स ना। तो अपनी कवरेज बढ़ाइए, बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। आई ऑलवेज रिपीट, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके घर की फाउंडेशन मजबूत है, इंटीरियर में आप कुछ भी, चाहे झूमर टांग लो, कुछ भी टांग लो, फाउंडेशन वीक है, कितना भी महंगा शैंडलियर टांगोगे वो हिलेगा ही, है ना। यस, बस यही ध्यान रखें। ओके बेटा, एनी अदर डाउट वी ऑल हैव? So shall we conclude the session? Thank you very much. All the very best. And those who want to join the course link will be shared in the groups wherever EduBridge IAS group you have joined. And for those who are watching this video on YouTube, they can have the link of the admission and the enrollment in the video description. And you are most welcome to ask your doubts. Join the Telegram group of EduBridge. Through that you can contact me, and also subscribe to EduBridge IAS and share it with your friends, because this initiative is focused mainly on the students, and tell them what is the right way to proceed for this preparation. Okay, thank you very much and wish you all the very best. And I am always accessible to you. You can always contact me. Okay, thank you very much.